Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, hope you all are doing well and taking your video lessons regularly. This is your English text class. Student, as you know that we have started a new lesson, Humanism, unit number 5. Open page number 87, and what the chapter is about, it is about the personality Abdul Sattar Eidi, who is known as an angel of mercy, and he is famous for his social and welfare work. अपने social और welfare work के लिए बहुत ही he is famous and he is known. और जो है now he is not alive, he is dead, but जो उनका काम है, उनकी contribution है in this area of in this field भी हमेशा याद रखी जाएगी. और ये एक लेजेंड है हमारे लिए, और इनके काम जो है हमारे लिए जो है वो एक ऑनर और रेस्पेक्ट का बायस है. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो है अभी हमने कुछ पैराग्राफ्स रीड किए थे इन द बिगनिंग, जिसमें उनका कंट्रीब्यूशन, उनका चैरिटी वर्क को थोड़ा हाईलाइट किया था. उसके बाद द ऑथर इज टेलिंग अस अबाउट हिज चाइल्डहुड मेमोरीज, और चाइल्डहुड उनका कैसा गुजरा, उनका लाइफ पे किस किस का इम्पैक्ट था, उनकी जो उनको ब्रॉटअप किसने किया, और उनकी लाइफ पे जो है वो किस पर्सनालिटी के इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा हैं उसको डिस्कस किया. उनकी कुछ जो है इंसिडेंट्स जो है वो यहाँ रिकॉर्डेड है, यहाँ पर उनके कोटेड किए गए हैं. यहाँ पर आपने देखा था जिसमें उन्होंने एक दफ़ा एक अपने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि उनको क्यों रोटी कहते थे उनके फ्रेंड्स. दूसरा उनकी जो है वो उस पर्सनालिटी को डिस्कस किया कि उनकी मदर कैसी थी, और जो है वो हमेशा उनको किस चीज़ के लिए जो है मोटिवेट करती थी, किस तरह की जो है वो उनकी तरबियत हुई है. ठीक है, तो ये जो है था आपका ये इन पैराग्राफ्स में डिस्कस किया था. अब वी आर कमिंग टू दिस पैराग्राफ, इट इज़ ऑन पेज नंबर 88. So let's start reading from here, because we have done reading along with the explanation till here. Or according to Abdul Sattar Eidi, he learned about love and care from his mother. She would always distribute cashew nuts, pistachios, ginger, and other food items that her husband sent her from Bombay, amongst the poorer families in her neighborhood. She would ask young Eidi to distribute these packets to families who were less fortunate than they were. One story that Eidi liked to share about his mother was about his school days. He said that when he was in school, his mother used to give him 2 paisas, one to buy something to eat for himself and the other to buy whatever he was eating for a poor boy watching him eat, but who had no money to buy for himself. Often when she asked him about the 2 paisas, she confessed that he had spent both the paisas on buying things for himself. Hearing this, she would tell him that he had eaten poor people's money. These poor people were Muslims disadvantaged. She told him to fear Allah, as he never helps those who do not look after the Muslims, who do not fulfill hukukul ibad, the rights of other human beings, as this was the first priority in Islam. Eidi also talked of the way his mother ensured that he did not waste his time. She would ask him to bring raw cotton to their home. She would then clean it and ask him to take it back to the shop in order to earn some money. She was of the view that no one should sit at home idly. Everyone should work to earn a living. Eidi often fondly recalled that it was his mother who planted the seed of social welfare and charitable work in him. She not only nurtured it but taught him how to control his desire for material things and to overcome personal greed. Eidi often said that although his mother's whole life was a struggle, she was always positive and kind to others. She was the one who taught him love for humanity when he was a child. So after her death, he decided to dedicate his whole life to the service of humanity. After his mother passed away, Eidi bought an old wagon with donation from her friend and converted it into an ambulance. This was the first ambulance service for the poor people, and he called it the Poor People's Van.
He did not charge for the ambulance service, but when people insisted on paying for it, they were told to drop money in a box outside the dispensary. Soon he was able to increase the reach of his services, and because of the ambulance, more and more people got to know about ED's organization and services. So this is quite enough for today. I stopped here. Okay, now I'm going to explain whatever I read. According to Abdul Sattar Idi, he learned about love and care from his mother. अब ये जो इनके पास इनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी, ये इनके एट्रीब्यूट्स जो थे, जो ये इतने लविंग थे, काइंड थे, सिंपैथेटिक थे, ये कहाँ से इनको मिली थी? फ्रॉम वेयर ही गॉट ऑल दीज थिंग्स? ये उनकी मदर से उनके में ट्रांसफ़र हुई थी, इनहेरिट हुई थी. She would always distribute cashew nut, pistachios, ginger and other food items that her husband sent her from Bombay. ठीक है, तो आपको पता था हिज फादर वॉज अ ड्राई फ्रूट कमीशन एजेंट इन बॉम्बे, और उनके फादर जो है ही मोस्टली अवे फ्रॉम होम. तो वो क्या करते थे, ये सारी चीज़ें जो है वो अपनी वाइफ को यानी अब्दुल सत्तार ईदी की मदर को भेजते थे. ये कैश्यू नट्स भेजते थे, पिस्ताशियोज भेजते थे, जिंजर. कैश्यू नट्स जो है वो ये ड्राई फ्रूट्स के नेम है, और जो है कुछ और अदर फूड आइटम्स भेजते थे उनके हस्बैंड बॉम्बे से, और जिनको वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी अमंग द पुअरर फैमिली, जो बहुत ही गरीब लोग होते थे इनके इलाके में. इन हर नेबरहुड मीन्स, नेबरहुड मीन्स होता है एरिया, इनके जो लोकेलिटी में जो गरीब लोग होते थे उनमें वो पैकेट्स बना के क्या करती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी. एंड हाउ किस तरह उनका वो तरीका था, व्हाट वाज द वे शी वुड आस्क young Edie to distribute these packets to families who were less fortunate than they were. ठीक है, तो वो कुछ पैकेट्स बना दिया करती थी, और उन फैमिलीज़ को जो लेस फॉर्चुनेट थे, यानी ज़्यादा जिन कम हैसियत लोग थे, जिनके पास बहुत पुअर थे, उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी. वन स्टोरी दैट ईदी लाइक टू शेयर, जो एक इंसिडेंट एक और इंसिडेंट वो अपनी लाइफ का, अपनी चाइल्डहुड में का शेयर कर रहे हैं कि जो है वो उनकी स्कूल डेज़ के बारे में, वॉज अबाउट हिज स्कूल डेज़. वो क्या बताते हैं कि जब भी वो स्कूल जाते थे तो क्या होता था, हिज मदर यूज़ टू गिव हिम 2 पैसास. पहले जो है मनी से ज़्यादा पैसा, क्योंकि एक पैसे की एक वैल्यू होती थी, तो ये एक वैल्यूएबल अमाउंट होता था. जैसे हमें आज मिलते हैं 10 बच्चे को आजकल जो है स्कूल के लिए 10 रुपीज़ 20, इसी तरह पहले भी बच्चों को पैसे दिए जाते थे उनकी, ताकि वो कुछ अपना लंच कर लें. तो 2 पैसास उनको दिए जाते थे. एक तो वो किस लिए दिया जाते थे, 1 to buy something to eat for himself, यानी एक मदर उनको इसलिए देती थी कि एक पैसे से वो अपने लिए चीज़ें खरीदें, एंड द अदर टू बाय वॉट एवर ही वॉज ईटिंग फॉर अ पुअर बॉय वॉचिंग हिम ईट, यानी एक उस बच्चे के लिए देती थी जो एक बच्चा जो उसको खाता हुआ देख रहा है, वो पुअर है, वो ही कैन नॉट अफोर्ड, जो खुद ख़रीद नहीं सकता, ये सारे एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर सकता, तो उसको दिया जाए. बट हु हैड नो मनी टू बाय इट फॉर हिमसेल्फ, यानी लेकिन उनके पास कोई मनी नहीं है, लेस फॉर्चुनेट हैं, तो वो उनके लिए पैसे देती थी. लेकिन क्या होता था, वॉट ऑफन व्हेन शी आस्क्ड हिम अबाउट द 2 पैसा, ही कन्फेस्ड दैट ही हैड स्पेंट बोथ द पैसास ऑन बाइंग थिंग्स फॉर हिमसेल्फ. लेकिन जब भी जो है वो उनकी मदर उनके इस पैसे के बारे में पूछती थी कि आपने स्पेंड किया या नहीं किया, तो वो हमेशा एतराफ़ कर लिया करते थे. कन्फेस मीन्स होता है टू एक्सेप्ट, टू एक्नॉलेज, एतराफ़ कर लेना कि वो उन्होंने दोनों पैसे जो 2 पैसा से वो अपने ऊपर ही खर्च कर लिए, अपने लिए ही चीज़ें खरीद ली. ओके, हियरिंग दिस शी, ये बात सुन के वो उनको हमेशा ये बात एक्सप्लेन करती थी कि उन्होंने जो है इस बात को उनको रियलाइज़ करवाती थी कि उन्होंने जो गरीब आदमी का पैसा है वो खा लिए, यानी हाँ होता उन्हीं का था, लेकिन वो किसके लिए स्पेंड करने के लिए देती थी, किसी पुअर बॉय के लिए. तो वो इस बात के लिए उनको ये चीज़ जो है वो हाईलाइट ज़रूर करती थी. एंड दीज पुअर पीपल वर मजलूम्स, और ये पुअर पीपल क्या थे, वो लेस फॉर्चुनेट थे, डिसएडवांटेज पीपल थे, यानी इनके पास जो है वो चीज़ें नहीं थी कि वो ये सब चीज़ों को जो है वो अफोर्ड कर सकते. तो ये इनको क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड मजलूम्स, तो उनको मजलूम कहा जाता है. शी टोल्ड हिम टू फेयर अल्लाह, और वो इस बात को भी बताती थी उनको कि आपको अल्लाह ताला से डरना चाहिए. क्यों डरना चाहिए कि ही नेवर हेल्प्स दोज हु डू नॉट लुक आफ्टर द मजलूम, कि अल्लाह उनकी मदद नहीं करता जो अपने से कमज़ोर, अपने से जो हेल्पलेस पीपल होते हैं उनकी देखभाल नहीं करते. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लुक आफ्टर, इट्स अ फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है टू टेक केयर, केयर फॉर करना, यानी ख्याल करना. हु डू नॉट
फुलफिल, और दूसरे अल्लाह ताला उन लोगों से की भी कभी हेल्प नहीं करते जो हुकूकुल इबाद को पूरा नहीं करते। हुकूकुल इबाद जो बंदों से रिलेटेड हुकूक होते हैं उनको अदा नहीं करते। द राइट ऑफ अदर्स ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी गई है इन इंग्लिश। एज दिस वॉज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इस्लाम, और इस्लाम में सबसे ज़्यादा जिसको प्रेफरेंस दी जाती है, जिसको अहमियत दी जाती है, वो सबसे ज़्यादा हुकूकुल इबाद को है। ठीक है। इसके अलावा ईदी ऑल्सो टॉक ऑफ द वे हिज मदर इंश्योर दैट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम, और जो है वो हमेशा जो है वो इस बारे में भी अपनी मदर की भी बात करते थे कि जो है उन्होंने कभी जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं किया है। शी वुड आस्क हिम टू ब्रिंग रॉ कॉटन टू देयर होम, वो उनसे कहती थी कि जो है वो रॉ कॉटन जो है वो लेकर आएँ अपने घर में, और फिर उसको जो है, क्योंकि कॉटन में जो है कुछ सीड्स भी मिक्स हो जाते हैं, फिर उसको क्लीन किया जाता है, उसको प्योरीफाई किया जाता है ताकि उसको रिफ़िल कर सके। जैसे ये लिहाफ ब्लैंकेट्स वगैरह, ये लिहाफ होते हैं, हमारे पिलो होते हैं, इसमें हम फिल जो करते हैं, तो ये उसको पहले साफ़ किया जाता है। तो वो साफ़ करने, ऐसी कॉटन को जो साफ़ नहीं हुई हुई थी उसको रॉ कॉटन कहते हैं। शी वुड देन क्लीन इट, फिर उसको वो साफ़ करती थी, एंड आस्क हिम टू टेक इट बैक टू द शॉप इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी। वो इसलिए करती थी ताकि जो है वो उसको साफ़ करके जो है दोबारा जो है वो शॉप पे भेज के उससे कुछ पैसे कमा सकें। शी वॉज ऑफ द व्यू दैट नो वन शुड सिट एट होम आइडली, यानी वो ये इस बात पे बिलीव करती थी, उनका एक बिलीव था, एक फेथ था कि किसी को भी घर में खाली नहीं बैठना चाहिए, यानी यूज़लेस नहीं होना चाहिए, यानी पर्पसलेस नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमेशा यूज़फुल और दूसरों के लिए काम करते रहना चाहिए। एवरीवन शुड वर्क टू अर्न अ लिविंग, हर एक को जो है वो अपने उसको कहते हैं कमाना चाहिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। ईदी ऑफन फॉन्डली रिकॉल इट दैट इट वॉज his mother who planted the stage of social welfare, द सीड ऑफ सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल वर्क इन हिम, यानी ये इनकी मदर ही की एफर्ट्स थी, उनकी तरबियत थी कि जो है जैसे उन्होंने ब्रॉटअप किया था, तो उन्होंने ये जो इनके अंदर सोशल वेलफेयर का, यानी रिफाई कामों का, समाजी फलाह व बहबूद का, और चैरिटेबल यानी ये जो खैराती काम होते हैं, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों से के लिए खड़े हो जाना, इस काम के लिए का जो मोटिवेशन थी वो उनकी मदर से आई है। तो उन्होंने इसके लिए यूज़ किया है, प्लांटेड द सीड ऑफ social welfare and charitable work in him. She not only nurture it's a new word for you. Nurture means भी क्या होता है, brought up करना, टू ग्रो, किसी को परवरिश करना, ब्रिंग अप करने के मीनिंग में आता है, ब्रॉट अप के मीनिंग में आता है। एंड सिर्फ उन्होंने उनको परवरिश ही नहीं की, बल्कि उन्होंने उनको सिखाया था कि हाउ टू कंट्रोल हिज डिज़ायर फॉर मटीरियल थिंग्स एंड टू ओवरकम पर्सनल ग्रीड, यानी कैसे हम अपने जो डिज़ायर होती हैं, यानी विशेज़ होती हैं, और मादी चीज़ों के लिए जो मटीरियलिस्टिक जैसे लोग बन जाते हैं कि घर हो, पैसा हो, कारोबार हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसके कपड़े हों, अच्छे जूते हों, तो इन चीज़ों की डिज़ायर को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कैसे जो है अपनी पर ज़ाती लालच, ग्रीड मीन्स होता है लालच को जो है वो किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है, इन अदर वे वी कैन से दैट कि टू थिंक अबाउट अदर टू हेल्प अदर्स, यानी अपनी ज़ात को ख़त्म करते हुए हम्बल हो जाएं और अपने दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहें। सो ईदी ऑफन सेड दैट ऑल्दो हिज मदर्स होल लाइफ वॉज अ स्ट्रगल, हालांकि उनकी अपनी मदर की लाइफ पूरी की पूरी ज़िंदगी एक जद्दोजहद थी, एक मुस्तकिल एंडलेस एफर्ट्स थी उनकी मदर की लाइफ में। तो शी वॉज ऑलवेज पॉजिटिव एंड सेड एंड काइंड टू अदर। हम लेकिन इतनी स्ट्रगल और इतनी एफर्ट्स को फेस करने के बाद, इतने ऑब्स्टिकल्स अपनी ज़िंदगी में फेस करने के बाद भी उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, इट वॉज सो काइंड, शी वॉज सो काइंड एंड पॉजिटिव टू अदर्स। शी वॉज द ओनली वन हु टॉट हिम लव फॉर ह्यूमैनिटी, उन्होंने उनको सिखाया इंसानियत से, टू सर्व द ह्यूमैनिटी, टू लव द ह्यूमैनिटी व्हेन ही वॉज चाइल्ड। कब से सिखाया? सिंस हिज चाइल्डहुड, यानी जब से वो छोटे थे। So after her death, he decided to dedicate his whole life to the service of humanity. That's why it was the main reason कि इनकी फंडामेंटल में ये चीज़ थी, इनकी तरबियत में भी ये चीज़ थी। इसी वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को डेडिकेट किया, किसके लिए? फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी, बाय फॉर द सर्विसेज ऑफ द ह्यूमैनिटी, यानी फॉर द सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसानियत की खिदमत के लिए। आफ्टर हिज मदर पास्ड अवे, जब उनकी मदर का इंतकाल हो गया, एदी बॉट एन ओल्ड वैगन, एक पुरानी सी वैगन खरीदी उन्होंने, विद द डोनेशन, किससे लिया? उसके लिए फ्रॉम वेयर ही गेट द मनी, गॉट द मनी, उन्होंने अपनी फ्रेंड से कुछ पैसे लिए, एंड कन्वर्टेड इनटू एन एम्बुलेंस, ये उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? एक एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया। दिस वाज द फर्स्ट एम्बुलेंस सर्विस फॉर द पुअर पीपल एंड ही कॉल्ड इट पुअर पीपल्स मैन। ये आपको बात समझ में आ रही है? ये पहली एम्बुलेंस सर्विस थी फॉर द नीडी पीपल, फॉर द
द हेल्पलेस पीपल, और इसको क्या नाम दिया गया, इट वॉज नेम पुअर पीपल्स वैन। ही डिड नॉट चार्ज फॉर द एम्बुलेंस सर्विस, वो नहीं चार्ज करते थे फॉर यानी पेशेंट को लाने फैच करना ये सब करने के लिए, वो कुछ भी चार्ज नहीं करते थे। लेकिन जब व्हेन पीपल इंसिस्टेड ऑन पेइंग, जब उनके वेल विशर्स ने उनको इंसिस्ट किया कि आप वो जो है उनको इस चीज़ के लिए कुछ पे करना चाहिए, लेना चाहिए, तो उन्होंने क्या बताया, दे वर टोल्ड, तो उन्होंने उनको जवाब ये दिया कि दे कुड ड्रॉप द मनी इन अ बॉक्स आउटसाइड द डिस्पेंसरी, कि वो उसमें फॉर द चैरिटी वर्क, वो उस डिस्पेंसरी के बाहर जो एक बॉक्स लगा हुआ है चैरिटी बॉक्स, उसमें पैसे डाल सकते हैं। सून ही वॉज एबल टू इंक्रीज द रीच ऑफ हिज सर्विस, एंड बिकॉज ऑफ द एम्बुलेंस मोर एंड मोर पीपल गॉट टू नो अबाउट ईदीज ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्विस। तो इस तरह उनकी बाय द हेल्प ऑफ पीपल जो है वो उनकी सर्विसेज उन्होंने अपनी इंक्रीज़ करते गए, अपनी खदमात को लोगों तक और पहुँचाते चले गए, क्योंकि उनकी एम्बुलेंस जो है वो और लोग जो है वो उससे फ़ायदा उठा रहे थे, एंड लोगों को पता चलता जा रहा था इनकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इनकी जो सर्विसेज वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए लोगों में दे रहे थे, तो उसके बारे में भी लोग अवेयर होते चले जा रहे थे। तो सून जो है वो ये इनकी जो ईदी जो है वो एक फेमस सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल वर्क के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा नोन हो गई, फैमिलियर हो गए, लोग होते चले गए। इस तरह इन्होंने अपनी मज़ीद और सर्विसेज बढ़ाई, जिसमें उनके ईदी सेंटर्स आ जाते हैं, जिसमें उनके जो है वो शेल्टर होम्स आ जाते हैं फॉर द ओल्ड पीपल, फॉर द नीडी पीपल। ये सब जो है इनके बहुत सारा वर्क जो है वो टाइम बाय टाइम वो अपने वर्क को एक्सटेंड करते गए। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छा चैप्टर है। एक हम लेजेंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक ऐसा लेजेंड जो अब अलाइव नहीं है, लेकिन उसका वर्क जो है वो हमेशा जो है याद रखा जाएगा। ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड by people because of his work and because of his kindness. Okay, so inshallah ta'ala we will complete in the next class the reading, and then we will switch to the exercises and other things. Okay, till then stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.